Okay, good morning, students. Today we are going to continue with the functions of marketing. So, the next function which we are going to discuss is function number 5. Okay, that is packaging and labeling. Okay, so why packaging and labeling is very important in marketing? Because uh, it is through this package we are delivering the services to the consumer concerned. So package does not mean that you are just having a cardboard or a transportation package which is helping us in delivering the goods, but the ultimate product which we are using is itself a package. Okay, like a laptop is designed in such a way that you have to carry the whole product. Okay, and that laptop is just not a screen or keyboard, but it consists of various other features also in that, and that is known as a package. Okay, so that is so a package plays an important role. Packaging plays an important role in marketing because it helps in easy storage, easy maintenance, okay, and safeguarding the product against various types of problems. And also, the package itself promotes itself, okay. जो प्रोडक्ट है उसकी जो पैकेजिंग है वो अपने आप को प्रमोट भी करती है। लाइक किसी मोबाइल का आपको डिजाइनिंग स्ट्रक्चर पसंद है तो आप बिना नाम देखे बिना उसके लोगोस देखे यू विल इजीली आइडेंटिफाई दैट ओके दिस फोन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, okay, or any TV or any other product where like a bike is there, you have no logos placed on that, but the design of that bike itself will help you in identifying that this bike belongs to a particular company. So that is what the packaging is. तो ये सेल्फ प्रमोटरी भी होते हैं, ओके। और लेबलिंग बेसिकली क्या है कि लेबलिंग इज प्रोवाइडिंग अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, how to use it, what is its price, what is its batch number, when it was produced, what is its expiry date, every other detail which is there. Or also with labeling helps in attracting by making the design or the structure or the wrap information presentable in such a way that people get attracted to the particular product. So that is what labeling is basically concerned with. Okay, तो ये बेसिक तो कंटेंट्स आपको इन्फॉर्म करता है। फिर इसके बाद है आपके पास दूसरा फंक्शन, दैट इज ब्रांडिंग। Branding plays an important role in marketing because any wrong brand name or any wrong branding strategy can fail the whole product. Okay, so that has to be done in a very sophisticated and systematic and sensitive way. Okay, so branding basically is we can say a name is being given to the product, okay, so that we can easily identify or understand which product is this, okay. So there are certain brands like Bajaj is there. So we when we say Bajaj, so everybody identifies it with bikes and scooters. Okay. When we say Hero, then everybody identifies itself with bikes and bicycles. Okay. Then we say TVS.
So everybody knows is that it is a brand belonging to automobile. Then if Dabur is there, then everybody knows that this product belongs to or brand belongs to like products like health products. Okay, तो ये आपके पास ब्रांड का एक इम्पैक्ट है कि वो आपको इन्फॉर्म करता है अबाउट what the product is actually for or what this company is going to sell provide you. So branding helps in distinguish the product from the competitors product. Okay, so ये आपके लिए हेल्प करता है और लॉयल्टी स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है और अपने और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो एक तो कॉम्पिटिटर से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, फिर लॉयल्टी और प्रमोशन में भी हेल्प कर रहा है ब्रांडिंग। दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। देन द there are various types of brand strategies which are being adopted by different companies. Some are adopting individual brand strategy, some are adopting universal or umbrella brand strategy. Means एक big brand है उसके अंदर सारे different products launch किए जा रहे हैं। ओके, तो और या फिर आपके पास हर प्रोडक्ट अपने 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 ब्रांड नेम से आ रहा है। जैसे सर्फ अपने से है, टाइड अलग, रिन अलग चल रहा है, घड़ी अलग चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग वॉशिंग पाउडर हो गए। सेम वे आपके पास सोप्स हैं, लक्स है, हमाम है, लाइफ बॉय है। ओके, और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो अलग 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 कर दिए गए हैं। तो उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल ब्रांड रेपुटेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स मेंटेन करके बैठे हैं। अगर एक प्रोडक्ट फेल कर जाता है तो बाकी प्रोडक्ट्स कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, और अगर अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी ली है आपने, तो उस केस में क्या है कि अगर एक भी प्रोडक्ट फेल करता है तो वो पूरे ब्रांड नेम पे इंसल्ट का रीजन हो सकता है। एंड दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी specifically that if we are going to use an umbrella brand, we need to work a lot while introducing the product into the market. Okay, तो ये आपके पास ब्रांडिंग है। फिर है आपके पास नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। Customer support service plays an important role in every business organization। ये है कि आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, कि आपने प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद उसकी आप ये एश्योरेंस दे रहे हो कि इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन रेक्टिफाइंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम which you are facing। And those companies which are having good after sales services, they are having better demands in the market because customer know that if some problem comes up, then there is a agency available or there is a services available through which we can solve that। So तो मारुति का सबसे बड़ा क्या था प्लस पॉइंट, कि उसने अपनी कस्टमर सपोर्ट सर्विस उसके हर कॉर्नर में अवेलेबल है कंट्री के। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस एंड नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड establishing the customer support service centers at various places, so that if some problem arises, the goods, the vehicle or the product can be easily repaired, maintained, and the services can be provided to the consumers। So customer support service प्लेज ए स्ट्रेटेजिक रोल। तो आप ये देखते हो कि पहले सैमसंग या जो भी कंपनी थी उनकी सेल ज़्यादा थी और एमआई के फोन्स की सेल कम थी। देन स्लोली एंड स्टडली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन franchise system or customer support service centers, okay, throughout the country, and now whenever they launch the product, you can easily get that product from those
offline stores which has been the chain of offline stores which has been spread far and wide, and if some problem arises then the customer support service is there to help you out. तो ये आपके प्रोडक्ट की एक गुडविल को इस्टेब्लिश करने में, उसको इजीली यूज करने में, उसको हैसल फ्री सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाने में आपको एक कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करता है, एंड देन यू आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट फॉर योर पर्सनल यूज। तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। ओके, देन नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग। अब किसी प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, वो कैसे आइडेंटिफाई होती है कि पहले तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी आई है प्रोडक्शन की। ओके, और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में। ओके, और वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग है, वो सारा आप अंडरस्टैंड करते हो, देन ओनली यू प्राइस अ प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर्स। ओके, तो प्राइसिंग आप पहले तो टारगेट मार्केट है आपकी डिसाइडेड कि आप किस टारगेट मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो उस टारगेट मार्केट को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज द कस्टमर इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, ज्यादा, बहुत ज्यादा आपने हाई रख दी तो भी आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है, और अगर आपने लो रख दी, people will start thinking that it is not a qualitative product. That's why you are charging such so low prices for the product which is not easily available at that price in the market. तो ये आपके क्या कहते हैं रेपुटेशन पे भी इम्पेक्ट करता है अगर आपकी प्राइसिंग रॉन्ग जाएगी। ओके, फिर demand and supply factors are there which are fixing up. Okay, another important thing is that you are fixing the price of the product depending upon your objectives कि आप करना क्या चाहते हो। एक तो है प्राइस स्किमिंग ऑब्जेक्टिव कि आपने एकदम से हाई प्राइस फिक्स कर दी, और जितनी सेल और सेल मैक्सिमाइज करके जितनी ज्यादा प्रॉफिट है एक झटके में आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने प्राइसेस को कम करना शुरू कर दिया। या है प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी है कि आपने क्या किया कि फार एंड आपने प्राइसेस बिल्कुल लो रखे, जिससे आपकी डिमांड और आपकी रिक्वायरमेंट फार एंड वाइड स्प्रेड आउट होनी शुरू हो गई, और वहां से आपकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई एकदम से। ओके, दैट हैज हेल्प्ड यू इन फिक्सिंग द प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। तो ये आपके कुछ एस्पेक्ट्स हैं प्राइसिंग के। फिर आ जाते हैं हम प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या मतलब है एडवर्टाइजिंग। ओके, सो एडवर्टाइजिंग और इन्फॉर्मिंग in the customers, the potential customers about the new products, about the utilities of the product, about the services being offered by the product or the company। तो ये प्रमोशन का काम है। ओके, और ये प्रमोशन हम कई टूल्स के थ्रू कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू। ओके, तो ये आपके पास अलग अलग टूल्स आप यूज कर सकते हो फॉर प्रमोटिंग दी प्रोडक्ट। ओके, और ये प्रमोशन करना आपको बड़े ध्यान से इसका प्लान आउट करना पड़ता है कि आप कहाँ से प्रमोट कर रहे हो। मान लीजिए आप एक ऐसे टीवी चैनल से प्रमोट कर रहे हो जिसको लोग देखते ही नहीं है और आपका पैसा वहां पे लगा हुआ है, तो वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, या फिर आप न्यूज़ मैगजीन्स में दे रहे हो जो नॉर्मल कस्टमर आपका वॉच नहीं करता है, तो भी आपका मतलब आपने प्रोडक्ट तो नॉर्मल कस्टमर, लोअर कस्टमर, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाया, मगर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आपने हाई एंड ऑटो कार या ऑटोमोबाइल या और भी मैगजीन्स हैं
जो कंपनी रिलेटेड मैगजीन्स हैं उनमें आपने वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया तो वो कोई बेनिफिट नहीं। ओके, तो आपको प्रमोशन में बहुत सारी चीजें कंबाइन करनी पड़ती है। एक तो एडवर्टीजमेंट है, फिर उसके साथ पर्सनल सेलिंग अटैच होती है, एंड दे कलेक्टिवली हेल्प यू इन इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स एज टू व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल with us, or what new products we are going to add up, so that you will have a smooth and efficient experience of using the goods and services. तो ये प्रमोशन का काम है। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन द सेंस दैट के प्रोडक्ट आपने बना लिया, अब वो प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर दी, यू मेड इट अवेयर टू द पीपल, बट यू आर नॉट मेकिंग दैट प्रोडक्ट basically available at the doorstep or nearer to the door, to the place where the consumer is residing, then it is of no use doing all these activities. Okay, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने सारी एफर्ट करके डिमांड क्रिएट कर ली, बट फाइनली यू हैव फेल्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट at the place from where the consumer can easily buy and consume the services। अगर आपने वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दिया तो भी आपका प्रोडक्ट फेल कर जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है that whatever you are promoting, whatever you are producing, that should be made available easily at in the places where the people are residing, so they can go, they can see, experience the product, and then can easily buy. And if some problem arises, they can approach those centers to rectify the problem। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग में, कि सारा आपने एक्टिविटी कर ली, बट फाइनली आपने कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इजी नहीं करवाई, तो भी आपका प्रोडक्ट फेल कर जाएगा। ओके, फिर है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमें पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारा कंज्यूमर है, वो स्कैटर्ड है फार एंड वाइड। वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स समवेयर एंड वी हैव टू गेट देम कंज्यूम समवेयर एल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि फिजिकल मूवमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए that we should have certain transportation services available with us, which are helping us in transporting the goods from one place of from the place of production to the place of consumption। ओके, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अमेजन ने अपनी एक एयरलाइन बना रखी है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो ऐसे ही उन्होंने और भी कई सर्विसेज बना रखी हैं। तो अभी जैसे सेट लॉन्च व्हीकल स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से बहुत ट्रांसपोर्टेशन मीडियाज आपको सोर्सेज को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिससे कि प्रोडक्ट जो जहाँ कंज्यूम होना है वहाँ पहुँचाया जा सके, जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इजीली पहुँचाया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, कि ट्रांसपोर्ट करना प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कहीं हो रही है और उसकी कंजम्पशन फार एंड वाइड कहीं होनी है। तो वो आपको कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को एक्टिवली उसकी क्या कहते हैं जो रिक्वायरमेंट है उसको एक्टिवली अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन so that the goods can be easily transported and provided with the consumer
who are in need of that product. Okay. अब इसके बाद एक और फंक्शन उन्होंने कहा है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहीं हो रहा है, कंज्यूम कहीं हो रहा है, एंड इन दैट टाइम फ्रेम it takes time for the movement of the goods from one place to another place, and to the final place of consumption. So to avoid last minute hitch, okay, sorry, glitch, एंड तो आपने क्या किया कि वेयर हाउसेज एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए कि जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से मूव करा के प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर स्टोरेज सेंटर पे के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, और वहाँ से जिन जिन एरियाज में जो जो प्रोडक्ट चाहिए वो इजीली अवेलेबल करवा देते हैं। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द regular supply of goods and services. Okay, it reduces the cost of physical movement of the goods, and also helps the companies in making the goods available 24 by 7 for consumption with the customer, okay, through the help of retailer। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास रिटेल स्टोरेज सेंटर्स या वेयर हाउसेस हैं। अगर आपका प्रोडक्ट हर बार कंपनी से चलेगा तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एंड improving the physical distribution system of the company, with the help of which it can have an edge over its competitors। तो ये है कुछ aspects, कुछ functions of marketing। After this we will do marketing mix in next lecture। Thanks।